نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، صحت مند زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا فرماتا ہے تو وہ بیماریوں کی تکالیف پر گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، درجات کی بلندی اور نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی رحمت کاملہ سے تمام بیماریوں سے شفا کے طریقے اور دوائیں بھی عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اب دین اسلام جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، تو دین اسلام ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں طب نبوی اور حجامہ کے ذریعے علاج کے طریقے بتائے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اعمال و اذکار یعنی دعاؤں کے ذریعے علاج کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں۔ دونوں طریقے، یعنی روحانی طریقہ بھی آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور طب نبوی کی شکل میں یعنی ادویات کے ذریعے، ہربل میڈیسن کے ذریعے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی علاج کے طریقے آپ نے بیان فرمائے ہیں، اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ میں علاج و معالجہ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تداووا فإن اللہ عز وجل لن یدع داء الا وضع له دواء غیر داء، یعنی کہ اے اللہ کے بندو علاج کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کے ساتھ میں اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی بیماریاں اتاری ہے، جتنی بیماریاں پیدا کی ہے، ان تمام کے تمام بیماریوں کے شفا کے طریقے اور دوائیں بھی اتاری ہے۔ اب وہ بیماریاں چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، ٹھیک ہے، طبی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی قسم کی بیماریاں ہوں، ان تمام کے تمام بیماریوں کے شفا کے طریقے اللہ تبارک و تعالی نے اتارے ہیں۔ اب میرے عزیزو، دین اسلام اور جدید سائنس اس بات پر متفق ہے کہ علاج زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان بیماری کے بعد علاج نہ کرے تو مرض بڑھتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے اور زندگی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے درست اور بر وقت علاج ہونا چاہیے، درست اور بر وقت علاج ہونا چاہیے، تاکہ جسمانی صحت بحال ہو، ذہنی سکون ملے اور انسان کے جذبات اعتدال پر رہے۔ اب یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دو چیزیں میں نے یہاں پہ ذکر کی ہے، کہ ایک درست علاج ہونا چاہیے اور بر وقت ہونا چاہیے۔ اب اس کو سمجھیے، جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے تب تک ہم جو ہے پریشان ہوں گے اور ہماری بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ موجودہ دور میں علاج کے مختلف طریقے رائج ہیں، وہ ایک طریقہ تو نہیں ہے، اور ہونا چاہیے
क्योंकि ये जो कायनात है, ये दुनिया है, ये दुनिया मुहक्किकीन के लिए, रिसर्चर के लिए एक अजीम तजर्बा गाह है। इस दुनिया में न इल्म की कमी है, न इल्म वालों की, और न ही बीमारों की कमी है और न ही बीमारियों की। ऐसी ना तो दवाइयों की कमी है और ना ही इलाजों की। तो इलाज के बेशुमार तरीके हैं। मुख्तलिफ ममालिक में चले जाइए तो तकरीबन ममालिक के अंदर जो देखने में आते हैं अक्सर व बेशतर इलाज के तरीके, जहां रूहानी तौर पर या तिब्बी तौर पर जो इलाज के तरीके राइज हैं, उनमें से जैसे कि कुरान करीम से दम करके उसकी तिलावत करके बीमारियों के इलाज के तरीके राइज हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर है। ऐसे ही एलोपैथिक तरीका इलाज, जिसे अंग्रेजी तरीका इलाज कहते हैं, ऐसे ही यूनानी तरीका इलाज है, आयुर्वेदिक तरीका इलाज है, होम्योपैथिक तरीका इलाज है, नफ्सियाती तरीका इलाज है, हिजामा के जरिए, ग़िज़ा के जरिए, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के जरिए इलाज के तरीके हैं। ऐसे ही मौसीकी यानी सॉन्ग, म्यूजिक के जरिए, रंग और रोशनियों के जरिए, वर्जिश यानी एक्सरसाइज और योगा के जरिए। इनके अलावा ये इतने ही नहीं कि ऐसा नहीं कि इतने ही इलाज के तरीके हैं जो मैंने बयान किए हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे इलाज के तरीके इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके इस दुनिया के अंदर, कायनात में, और कौन कौन से असरार और रमूज और तरीका इलाज पोशीदा है। समझ ले मेरी बात। अब जो है, अब इतने सारे इलाज के तरीके राइज होने के बावजूद भी बीमारियां खत्म नहीं होती और लोग परेशान हैं। बीमारियां खत्म नहीं होती और लोग परेशान हैं और समझते हैं कि करे तो करे क्या, कौन सा इलाज इख्तियार करें, रूहानी करें, तिब्बी करें, क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आता। अब ना समझ में आने के पीछे वजह है कि लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। मौजूदा दौर में इलाज मुआवजे में इफरात और तफरीत बहुत ज्यादा बढ़ी है और इतनी बढ़ चुकी है कि अल्लाह की पनाह है। अगर हम अपने आसपास में देखें, गौर करें, तो दो किस्म के लोग हमें हमारे मुआशरे के अंदर मिलते हैं। कोई कहता है कि अगर आप बीमार हो जाओ तो सिर्फ दवाइयों के जरिए इलाज करो, दवाइयों के जरिए इलाज होना चाहिए, बाकी सब जो है अंधविश्वास है, शिर्क है, बिदत है। और अब तो इतना भी हो चुका है कि लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक तरीका इलाज से इलाज करवाओ, बाकी नहीं तो आप आयुर्वेद की दवाइयां खाओ, नहीं आप यूनानी दवाइयां खाओ, नहीं आप होम्योपैथिक की दवाइयां खाओ, नहीं कोई दूसरी और पैथी की दवाई खाओ। अब तो यहां तक बात चल निकली है। तो मेरे अजीजों, मैं जो कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जब कभी भी हम बीमार हो जाएं तो हमें दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। हम दवाई की हरगिज मुखालिफत नहीं करते। हमारे पास भी जो मरीज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें दवाई भी देते हैं। तो कुछ लोग इस किस्म के भी हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ दवाइयों के जरिए इलाज होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल बीमार होने पर दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। कब? जबकि मर्ज उस नौइयत की हो कि दवाई से इलाज हो सके। दूसरी किस्म की जो लोग हमारे मुआशरे के अंदर है, वो कहते हैं कि भाई जब भी बीमार हो जाओ तो सिर्फ रूहानी इलाज करवाओ, दम दरूद करवाओ, झाड़ फूक करवाओ। इस किस्म के भी लोग हैं हमारे मुआशरे के अंदर। तो अगर इन दोनों किस्म के लोगों के अगर हम बात करें और कुरान और हदीस और बुजुर्गाने दीन की तालीमात की रोशनी में, तजर्बात की रोशनी में हम देखें तो दोनों किस्म के लोग गलती पर हैं, गलत कहते हैं, गलत बोलते हैं। जो कहते हैं कि सिर्फ दवाइयों के जरिए इलाज होना चाहिए, दुआ नहीं होनी चाहिए, दम दरूद नहीं होना चाहिए, वो भी गलत करते हैं, गलत कहते हैं। और जो कहते हैं कि सिर्फ जो है दुआ करवाओ, दम दरूद करवाओ, दवाइयां ना खाओ, वो भी गलत कहते हैं। क्यों? इस बात को समझिए कि जो मर्ज
हमें लाहक होते हैं तो मर्ज दो तरह के होते हैं, एक तिब्बी और दूसरे रूहानी। तिब्बी अमराज का जो इलाज है वो डॉक्टर हजरात करते हैं, हकीम हैं, वैद हैं, या जो बदन इंसानी के इल्म रखने वाले लोग हैं वो उसका इलाज करते हैं। और रूहानी बीमारियों को जो इलाज है वो है, उसका इलाज करने वाले आमिलीन हैं, उलमा हैं, या जो इस फन के माहिर हैं, क्योंकि हर फन के लोग हैं, हर फन का एक इल्म है, उसके जानकार हैं, जानने वाले हैं। तो जिस तरीके से तिब्बी इलाज मुआलजा वो लोग कर सकते हैं जो बदन इंसानी का इल्म रखें, तो ऐसे ही रूहानी इलाज है। और आने वाले वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। तो अब ये समझिए कि तिब्बी बीमारियों का इलाज दवा से मुमकिन है, और रूहानी इलाज का, जो रूहानी बीमारियां हैं उसका इलाज जिक्र अज़कार, दुआ, सदका व खैरात और कुरान करीम के जरिए होता है। जैसा कि खुद कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान में वो चीज उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अब ये जो आयत है सूरह असरा की 15वें पारे की, तो इस आयत की जो तफसीर है, इस आयत के तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो कुरान करीम है वो हर किस्म की बीमारियों के लिए शिफा है, चाहे वो बीमारी तिब्बी हो, चाहे वो बीमारी रूहानी हो। मगर अब कुरान पाक बेशक शिफा है, मगर इसके फिर इससे शिफा हासिल करने के उसूल है, तरीके हैं। अब जो है, इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जब कभी भी आप या आपके घर का कोई शख्स बीमार हो तो इस बात पर जरूर गौर और फिक्र कीजिएगा कि आया ये मर्ज किस नौइयत का है, तिब्बी है या रूहानी है। मर्ज जैसा होगा इलाज भी वैसी करनी होगी, करानी होगी। अगर हम किसी एक गिरोह की बात पर यकीन करके दूसरे किस्म के अमराज का इलाज ना करें तो मुमकिन है कि आपको शिफा नसीब नहीं होगी। अब बीमारी भी ही रहने वाले हैं। जैसे बिलफर्ज मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान तिब्बी अमराज में मुबतला है, अब वो बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ दुआ के सहारे बैठा है, दवाइयां इस्तेमाल नहीं कर रहा, गलती कर रहा है। ऐसे ही अगर किसी इंसान को रूहानी अमराज है, अब वो बंदा सिर्फ दवाओं के जरिए ही शिफा चाहता है, तो भी ये गलती पर है। क्यों? कि रूहानी बीमारियों का इलाज दवा के जरिए मुमकिन ही नहीं है। और बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताए हैं बिल्कुल हक है, सच है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अगर हम तालीमात को हम देखें, अहादीस रसूल का मुताला करें, तो हमें ये बात वाज़े तौर पर समझ में आती है। जैसे मैंने पीछे बताया भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां हमें तिब्बे नबवी अता किया, वहीं आपने दुआ और जिक्र अज़कार भी हमें बताए हैं। तो ये बात समझ लीजिए, अमराज दो किस्म के हैं और दोनों के इलाज मुख्तलिफ हैं। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आने वाले वीडियोस में हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे, बताएंगे आप लोगों को। अगर आप हजरत तिब्बी और रूहानी बीमारियों के असबाब व वजूहात और अलामात व इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी ख़ास मर्ज के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। तो आने वाले वीडियोस में हम कुरान और हदीस, बुजुर्गान दीन की तालीमात और जदीद साइंसी तहकीकात की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा, इतनी गुजारिश है
کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو ویڈیو کی لنک شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو افراط و تفریط اتنی بڑھ چکی ہے اس کا خاتمہ ہو اور لوگوں تک جو ہے درست معلومات پہنچیں اور ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، شاد و آباد رکھیں، ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔